ओके, सो 1.3 का जो मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने नहीं किया है? मुझे किसी ने भेजा तो नहीं वैसे। एक्सरसाइज 1 2 मैंने करा दी थी। एक्सरसाइज 3 के 3 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे। हाँ आदित्य बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा था क्या? नो। क्वेश्चन नंबर 5 किया सबने? क्वेश्चन नंबर 4 सबने किया? या क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आया महर? सिर्फ 4 का 1, 1 आया था। ओके, सॉरी 9 बाय 9। 9/9 यानी 1 ही आएगा ना? यस। ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी के लिए है, और मैं जिससे पूछता जाऊंगा मुझे बताता जाएगा, और पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि कैसे हमें करना होता है। ओके, सपोज या somebody ask you to represent 25.725 638 and bar is on 38. This is a question. I am giving you the most toughest question that anybody can give you at the when you are in grade 9. All right, ओके। this is the most toughest question that anybody can give. So now how to do this question? So let's start with a timer as well. At the same time we should have a timer as well, so that we see that how much time it takes to do a particular type of question. This question is of you will get maximum 4 minutes to do this question. Okay, so I'm starting the timer, and please first take a note of it how it is being done. So the first step is that we will write let x is equal to 25.725 and the bar is on 38. If you want to do this question in a rough work, what is the answer that you are going to get? In the denominator, since two numbers are repeating, so you will write 99. Since to reach that repeating decimal you need 4 steps, so you will write 4 zeros here. Okay, and in the numerator you will write 25.725.638 minus, then apart from 38 you will subtract everything. Okay, so you will या subtract 25.7256. Now 8 minus 6 is 2, 13 minus 5 is 8, then 5 minus 2 is 3, then this will become 14, minus 7 is 7. No, it will become 15. 15 minus 7 will become 8. This is 3, this is 8. After that, this will become 11. 11 minus 5 is 6, then 6 minus 2 is 4, and then this will become 2 5. So this will become 2 5 4 6 8 3 8 2. Okay, so we got this answer in 1.5 minutes if we are going to do in a shortcut method, but this is not the way that you will get the marks. You have to write this question all the steps. So this is the first step that we will write let x is equal to 25.725638 bar. Now the second step is very important step. You have to multiply this particular thing by that number 10 raised to the power that number by which the decimal should come immediately closer to the repeating decimal. So what is that number? To make this jump of 4 steps, by which number you will multiply? Tell me. Multiply the equation by 10 to the power 4. How many steps you want to make jump? 4 steps. 1, 2, 3, 4. So you are going to multiply it by 10 to the power 4. So what you will get? You will get 10,000x is equal to 2 5 7 2 5 6 3 8 2572568 3 bar. 8. या Now our main aim is to remove this bar. Okay, या so since two numbers are repeating, and I will mark this equation as 1. So what I'll do, since two numbers are repeating, I will multiply this equation by 100, 10 to the power 2. So multiply, this is the third step, multiply 1 by by 10 to 10 to the power 2.
So here you will have two more zeros. So apart from 4 zeros, you will find two more zeros here. Okay, and here you will write the same number as it is. Just we will shift this decimal two more units, and then again we will put 38 bar. Everybody getting it or not? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने उस नंबर को x मान लिया, दूसरे स्टेप में हमने 10 टू द पावर उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे कि डेसिमल इमीडिएटली रिपीटिंग डेसिमल के बगल में आके बैठ जाए. ओके, अगर वो पहले से ही है तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है. एक सवाल हम वैसा भी देख लेंगे. अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. तो आप देखिए ये कितना है, अगर मैं जीरोस काउंट करूँगा तो मेरे ख्याल से 4 नंबर के बाद जीरोस है, तो 4 नंबर तक तो जीरो एज इट इज ही रहेगा. समझ में आ रहा है? 5वें नंबर से 10 माइनस 1 करोगे तो ये 9 हो जाएगा. उसके बाद 1 2 3 4 4 जीरोस के बाद 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 38 बार आपस में कैंसिल हो जाएगा और फिर यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने सोची थी, 25468382. तो ये x भी आएगा इसके साथ, तो x की वैल्यू आ गई 25468382 डिवाइडेड बाई 99, 9,90,000. ठीक है, इसी आंसर को हम कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं. तो हमारे सामने नंबर है 25468382 डिवाइडेड बाई, मैंने 2 नहीं लिखा शायद, डिवाइडेड बाई 1999 फिर 4 जीरो, 3 ही जीरो, 1 जीरो और लिख देता हूँ. और आप देखो क्या नंबर है आपका, जरा मैच करो. 25.7256 और फिर 38383838 रिपीट हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबको समझ में आया? कितने मिनट लगे? 5 मिनट 21 सेकेंड, जिसमें से 1 मिनट 21 सेकेंड्स लगे थे शुरू के रफ वर्क को, यानी 4 मिनट में क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया भी है. क्लियर है? यस सर. आदित्य समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जिसमें आपको जंप की जरूरत नहीं पड़ती. कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सिंपल, 5.343 और 343 पे बार है. तो इसमें पहला स्टेप तो बच गया आपका. सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, पहला स्टेप तो यही है, लेट x इज इक्वल टू 5.343 बार. अब क्योंकि डेसिमल पहले से ही रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बगल में है तो हम इसको सीधे किससे मल्टीप्लाई, इसी को इक्वेशन 1 दे देंगे. याद रखना, इक्वेशन 1 हम हमेशा तब देते हैं जब हमारा डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल के जस्ट बगल में होता है, तब तक इक्वेशन 1 नहीं देना है. क्लियर है? फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 3, क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख देना है क्योंकि ये डेसिमल 3 यूनिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो फिर से हमारे पास डेसिमल 343 बार आ जाएगा. इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे. फिर हम स्टैंडर्ड करेंगे 2 माइनस 1. ठीक है, तो हमारे पास आएगा 999x, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आएगा. समझ में आ रहा है? और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5343.343 बार माइनस 5.343 बार. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 43 में से 5 गए 38, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5338 डिवाइडेड बाई 999. x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 मिनट में हो गया. यहाँ से फिर से हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर, 5338 डिवाइडेड बाई 999. 5.3433, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकेंड, 5338 डिवाइडेड बाई 999,
5.343343 हाँ यही आ रहा है कि नहीं? सबको क्लियर है? तो सबसे पहले तो इन स्टेप्स को नोट करो और इसी तरीके से लिखने की तरीके को सीखो। मैं टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 मिनट में कॉपी कर लेना है, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। और किसी को कोई डाउट है तो ओपन हूँ मैं क्वेश्चंस के लिए, मेहर, दिया एंड आदित्य, कि सर क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले तो आपको एक्स मानना ही मानना है। अगर आपका डेसिमल जस्ट रिपीटिंग डेसिमल के बगल में है तो उसी को इक्वेशन 1 दे दो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 टू द पावर उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जितने जंप से वो डेसिमल वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उतने ही x इज इक्वल टू पूरा का पूरा नंबर, डेसिमल पूरा का पूरा आ जाएगा, जस्ट बगल में आ जाएगा रिपीटिंग डेसिमल के, उसको इक्वेशन 1 दे दोगे। फिर जितने डेसिमल से रिपीट हो रहे हैं 10 टू द पावर फिर उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में और उतने जीरो ऐड हो जाएंगे, और राइट साइड में जो रिपीटिंग डेसिमल है उसके साथ नंबर ऐड हो जाएगा और रिपीटिंग पार्ट फिर से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इसी का शॉर्टकट भी मैंने बताया था आपको। बात आती है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की। यही आंसर नहीं होता एग्जाम में, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं आपको, कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है अक्सर वो 9 के फॉर्म में आएगा, 90 के फॉर्म में आएगा, 990 के या 9900 इसी तरीके के फॉर्म में आएगा। तो इनके फैक्टर्स सिर्फ 3 होते हैं। एक तो 3 हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। क्योंकि 10 को डिवाइड करने वाले नंबर हमारे पास 2 एंड 5 है, और 9 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास नंबर 3 है। तो अगर न्यूमरेटर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको फैक्टराइज कर देना, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उसको वैसे ही छोड़ देना, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिर्फ 3 नंबरों पे चेक करना है, 3 पे, 2 पे, 5 पे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। आदित्य, दिया? नो सर। ओके नो सर। ओके। सर आपने अभी 3 to 5 वाला क्या बताया? क्या बेटा? सर आपने कुछ 3 मैंने वो बताया to 3 5 फैक्टर से बेटा। मैंने आपको बताया factors। कि जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका 9 के फॉर्म में आएगा, या 90 के फॉर्म में, या 900 के फॉर्म में, या 9900 के फॉर्म में आएगा। देखो हमेशा डिनोमिनेटर इसी तरीके का आता है। तो 10, इसमें एक 10 छुपा हुआ है जिसके फैक्टर होते हैं 2 और 5, और एक 9 छुपा होता है जिसके फैक्टर होता है 3 प्राइम फैक्टर्स। तो अगर न्यूमरेटर आपका 2, 3 या 5 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है इन तीनों में से, तो आप उसको फर्दर फैक्टराइज करोगे, ऊपर नीचे डाल के सिंपलेस्ट फॉर्म में डालोगे, और नहीं तो फिर वहीं छोड़ दोगे। अगर न्यूमरेटर में ये तीनों फैक्टर नहीं मिलते हैं, क्या नहीं मिलते? अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। नहीं तो आप उसको फर्दर डिवाइड करते जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हो गया? या 4 मिनट दे दिए मैंने। एक दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको भी नोट कर लो। यही 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक में डेसिमल बगल में होगा, एक में डेसिमल होगा ही नहीं।
हो गया? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं इसके लिए टेस्ट तैयार करूंगा इस चैप्टर के बाद, देख लेना। बाद में मत बोलना सर ये मैं भूल गया। क्लियर है Done, सबको? sir. मेहर? 1 minute, sir. ओके, सोच लो, प्रैक्टिस कर लो। और अलग अलग बुक्स आती हैं मार्केट में, अवेलेबल है। आर एस अग्रवाल है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप अमेजन से किंडल वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ही खरीद लो हार्ड कॉपी, सब तो स्टूडेंट्स हो, माँ बाप आपकी हेल्प करेंगी। उनमें से भी क्वेश्चंस लगाओ, मोर प्रैक्टिस सम्स लगाते जाओ सब लोग, ठीक है? और एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस लगाने ही हैं आपने, उसके एग्जाम्पल्स, उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप्स। इतना लिखोगे तभी नंबर मिलेगा आपको, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे सर मैं तो सब लिख के आया था, नंबर ही नहीं आया मेरे तो, हैं? टीचर ने नंबर काट लिए। टीचर बोलती है आप ज़्यादा नहीं लिखते हो। अब देखो ये वाला नंबर अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर का एक ही फैक्टर है, कौन है? 3। ठीक है, न्यूमरेटर 3 से डिवाइड हो ही गई नहीं। 5 3 8 3 11 8 19, सो 19 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन पिछले वाले केस में ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आगे Yes, बढ़े? सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Okay. अब इसने बोला एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आप लोगों ने किया था Sir, डिवीजन? 16. 16 आए थे, 16 रिमाइंडर्स आए थे, सबने देखे थे? Yeah. ठीक है। फिर लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया। क्यू कैसा होना चाहिए? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yeah. 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो क्या लिखेंगे? √2, √3, √5, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम और क्या नंबर लिख सकते हैं? 1.01, 011, 011 और फिर डॉट डाल देंगे। 3 डॉट डालेंगे, 3 से ना ज़्यादा ना कम, 3 ही डॉट डालने होते हैं। Hmm. 3 से ना ज़्यादा ना कम। Come. Okay. ऐसे ही 1.02, मतलब कोई भी 3 नंबर ले लो। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर की कहानी बताई थी मैंने, ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 उस क्लास में डिस्कस किया था ना, लास्ट क्लास में, भूल गए? अरे हाँ कि ना? We have to do half into 5/7 plus 9/11, and then whatever we get, that we have to add with the. ना 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 ना, चलो देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। Even that is one way, right? जस्ट Half. वेट, that is one way, okay, that is also a one way, we can say that, but let's see how to do that question, okay? Hmm. चलो क्वेश्चन नंबर 8 सबने किया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, सबने कर लिया है होमवर्क में? That I think. Yes, sir. चलो फिर एक बार देख भी लेते हैं, सब लोग देख लो कि सही किया है कि नहीं। तो 5 डिवाइडेड बाई 7, अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो 7 0 जा 0, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यानी 7 1 जा 7, फिर 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, फिर 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, यानी इसके ऊपर बार लग रहा है। ओके, 9/11, 9/11 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले 0 लिखूंगा, डेसिमल डाल दूंगा, 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11, फिर 90 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88, तो यानी 0.81 बार। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास नंबर है 0.714285, यानी हमारा नंबर 71 से बड़ा है और 81 से छोटा है। तो इसके बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने 0.72 ले लिया, और फिर इसके बाद हमने 0 2 0 2 2 0 2 2 और 3 डॉट डाल दिए।
तो इस तरीके से 0.72 के बाद हम 0, 1, 0, 11, 0, 111 इस तरीके से हम अनगिनत नंबर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? Yeah. Yes, sir. मेहर बेटा क्लियर है? आदित्य? सब क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन ए नंबर लाइन, इसको जूम करके देखना है। जूम ले बाबा, तो जूम करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, समझने के लिए होते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हो इसको। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कभी भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। You have learnt in earlier classes that rational numbers satisfy the commutative, associative, distributive law of addition and multiplication. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except by 0 two rational numbers, we still get a rational numbers. That is, rational numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. डिवीजन में खास बात क्या है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है। It turns out that irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive laws of addition and multiplication. However, the sum, difference, quotient and products of irrational numbers are not always irrational. हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि एक कमरे में दो को बंद कर दिया। मान लो एक कमरे के अंदर हमने एक आदमी और एक औरत को बंद कर दिया, और जब 9 महीने बाद हमने कमरा खोला तो अंदर से शेर निकला। ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आदमी अंदर, आदमी और मतलब एक ह्यूमन बींग्स अंदर जाएंगे तो बाहर भी ह्यूमन बींग ही आएंगे, है कि नहीं? तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो ऑपरेशन कर रहे हो वही चीज़ वहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन ऐसा इर्रेशनल नंबर्स में हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। √6 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें √6 ऐड करूंगा तो हो सकता है मेरा आंसर आएगा 2√6। हो सकता है क्या? पक्का ये आएगा, ओके। लेकिन मैं √6 में अगर -√6 ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो एक तरफ तो मेरा आंसर इर्रेशनल नंबर आ रहा है और दूसरी तरफ मेरा आंसर रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसलिए दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर मैं एक √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6। लेकिन मैं √6 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा √12। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो कहीं भी क्लोज नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? दिया, मेहर, आदित्य? Yes, sir. ओके। Yes, अब आपसे चेक करने को बोला जा रहा है कि ये सारे नंबर रैशनल है कि नहीं है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, सीधे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल विच आर नॉट, या फिर ऑप्शंस में आ जाएगा ABCD में 4 नंबर दिया जाएगा, फाइंड द रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे करके। तो देखो बेटा 7√5, √5 एक इर्रेशनल नंबर है और उसको अगर आप एक रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इर्रेशनल ही आएगा। क्लियर है? 7√5, एक बात स्टार बना के लिख लो सब लोग ध्यान से। यू शुड नेवर राइट स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर। ये रूल है कि डिनोमिनेटर में पहली बात तो नेगेटिव साइन नहीं लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर की अपनी एक इज्जत है, मैं नीचे रहता है, ध्यान से रहता है, मेरे पे नेगेटिव साइन नहीं आने का है। समझा क्या? डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव साइन नहीं हो सकता। अगर है तो उसको किसको दे देना है? ऊपर, न्यूमरेटर को। बोला भैया ऊपर वाले फ्लोर पे दो, मेरे को नहीं देना है, मैं वैसे ही बहुत परेशान है। फिर नीचे अंडर रूट भी नहीं हो सकता। अगर 7/√5 है, बोलेगा भैया मेरे को रैशनल बनाओ, तो इसको रैशनल कैसे बनाएंगे? इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइज करना। तो किसी भी रूट को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रैशनलाइज हो जाता है। वो क्या बन जाएगा? √5 × √5 क्या बन जाता है? 5।
और ऊपर आ जाएगा 7√5। क्लियर है? ये भी अपने आप में कैसा नंबर है? इर्रेशनल है। क्लियर है सभी को? अगला नंबर है √2 + 21। 21 तो दोस्तों रैशनल है, पर √2 इर्रेशनल है, और इर्रेशनल नंबर रैशनल में ऐड नहीं हो सकता। पहली बात तो इर्रेशनल नंबर रैशनल के साथ ऐड हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर आएगा √2 + 21, और ये अपने आप में कैसा नंबर है? इर्रेशनल। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नंबर पाई -2। पाई -2 भी दोस्तों इर्रेशनल है, क्योंकि पाई अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। तो पाई -2 भी इर्रेशनल है। आप इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को आपस में ऐड नहीं कर सकते। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? सिर्फ रैशनल है, क्या बेटा? सिर्फ पाई इरेशनल है। पाई इर्रेशनल नंबर है बेटा। इस दुनिया में एक खास बात बताता हूँ, सभी ध्यान रखना। कोई इंसान ये साबित करना चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी किंग वाला इंसान हूँ, मुझे बहुत चीज़ें याद रहती है। Okay. तो एक इंसान आया, उसने बोला मैं तो गीता के 700 श्लोक ही सुना दूंगा। एक इंसान आया, बोला मैं बाइबल सुना दूंगा। कोई आगे बोल रहा है मैं कुरान सुना दूंगा। कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे तो बहुत सारी कहानियां पता है, मैं प्रेमचंद की सारी कहानियां सुना दूंगा। तो मेमोरी का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। किसी को कुछ याद हो सकता है, किसी को कुछ याद हो सकता है। तो ऐसे कैसे? कोई इंसान बोलना ही तो है। मैंने बोला मैं तो धरती, पहाड़, पर्वत कुछ भी बोल रहा हूँ। तो मेमोरी का एक क्राइटेरिया होता है। क्या है क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया है कि पाई की वैल्यू याद करके सुनाओ। पाई की, और किसी की नहीं, √2 की, √3 की नहीं, पाई की। तो इंडिया में मिस्टर कृष्ण चहल थे, मेमोरी किंग का कोर्स भी चलाते थे, मैंने उनसे किया भी था। ही वॉज द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर इन रिसाइटिंग। कुछ 3 घंटे कुछ मिनट्स में उन्होंने करीब 40,000 या 60,000 डिजिट्स तक पाई की वैल्यू करेक्ट विदाउट एनी एरर सुनाई थी उन्होंने। सो किसी को भी मेमोरी किंग बनना है तो पाई की वैल्यू याद कर लो। 40,000 डिजिट तक, मतलब समझ लो 40,000 डिजिट से कोई रिपीट नहीं हुआ था, कभी रिपीट होगा ही नहीं। आज मैं एक वीडियो भी भेजूंगा तुम लोगों को। हमारे जो मैथ्स के फाउंडर हैं क्यू मैथ के, मैं क्यू मैथ में भी पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने पाई के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है। मैं वो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, सब लोग देखना उसको। पाई इतना बढ़िया नंबर है, कभी रिपीट नहीं होता, वो कभी रिपीट नहीं होगा, ना कभी खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, ना कभी रिपीट होगा। जो 22/7 आप लोग लेते हो, दिस इज द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू होती है, और इसको 3.14 भी ले लेते हैं हम लोग जब सर्कल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पर दिस इज एन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ, और हम उस रूल्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ रूल बताता हूँ आपको, ध्यान से आप लोग समझ लो इसको। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो सभी को पता होंगे, और मैं कुछ लिखने का तरीका बताऊंगा, फिर से सबके लिए रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, 10 मिनट, क्योंकि सब लोग लेट आए हो। ठीक है तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 5 मिनट तक मैं इंक्रीज कर दूंगा, 8:05 पे इस क्लास को ख़त्म कर दूंगा। तो ध्यान से समझो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात अगर हम करते हैं, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स दोस्तों क्या होता है? पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ कहता है कि किसी भी नंबर की पावर m इंटू किसी भी नंबर की पावर, उसी नंबर की पावर अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा Yeah. तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। AM N. A plus M N. पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। फिर इसी में बोला कि एक नंबर की पावर m डिवाइडेड बाई अगर मैं उसी नंबर की पावर n कर दूंगा तो पावर आपस में A to सबट्रैक्ट the हो power M minus N. जो थर्ड लॉ है उसमें नंबर चेंज हो जाते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, इसमें नंबर चेंज हो जाते हैं लेकिन पावर सेम रहती है। तो बोलता है कि भैया आप पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पावर m ले लो। फिर चौथा लॉ इसी को डिवाइड में बोलता है कि किसी नंबर की पावर m डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m है, तो बोला पहले नंबर को डिवाइड कर लो और फिर कॉमन पावर लगा दो। ठीक है,
जो फिफ्थ लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का लॉ है कि किसी नंबर की पावर m है और उसकी पावर n है, तो बोलता है भैया पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद जो सिक्स्थ लॉ है वो सेकेंड लॉ से ही डिराइव हुआ है। अगर मैं किसी नंबर की पावर ऊपर भी m रख दूं और उस नंबर की पावर नीचे भी m रख दूं, तो ये हो जाएगा दोस्तों m माइनस एम सेकेंड लॉ की मदद से, तो 8 द पावर 0 हो जाएगा। और अगर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। फिर सेवेंथ लॉ भी सेकेंड लॉ से ही डिराइव होता है। मैंने किसी नंबर की पावर 0 a की पावर 0 डिवाइड बाई a की पावर m रखा, तो दोस्तों ये क्या हो गया 1 बाई ए टू द 1 पावर by m। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 0 माइनस एम, जिसका मतलब हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एम। तो पहले तो ये 7 लॉ लिख लो, और किसी को समझ नहीं आया कि सर ये लॉ कैसे काम करता है तो मुझे बताओ। वैसे मुझे उम्मीद है कि 7th क्लास में और 8th क्लास में आपने ये एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो अब जब आप 9th क्लास में आए हो तो इतना तो आपको पता होगा। इतना लिख लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है ना? Yeah. Yes, sir. रिवीजन के लिए मैंने लिखा है, कोई सोच रहा होगा कि सर ये तो मुझे आता है मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं करना। तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यहाँ पे मैं हूँ, मैं जब लिख रहा हूँ तो आप लोगों को भी लिखना है। कोई बोल दे नहीं सर मैं आपसे ज़्यादा होशियार हूँ, कोई है? No. अभी तक तो नहीं है, हो जाएगा भविष्य में। कोई आईएएस बनेगा तुम में से, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, तब मैं भी तुम्हें सलूट मारूंगा। लेकिन अभी आज की डेट में मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, तभी वो बन पाओगे जो मन में सपना है, चाहे एक्टर ही बनना हो। शाहरुख खान सबसे अच्छा एक्टर है, मुझे ऐसा लगता है मेरे परसेप्शन में, लेकिन उसके इंटरव्यूज़ का भी सुनो तुम लोग। इंग्लिश हिंदी में क्या बढ़िया कमांड है उसकी, वो किसी भी फील्ड में जाता बेस्ट ही रहता। तो आप लोगों को भी एक सीखने की ललक और एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये आना है, समझ में आना है मुझे। उसके लिए जो मेहनत होती है, जो बेसिक्स होते हैं, दैट यू हैव टू राइट एवरीथिंग। मैथ्स लिख के ही आती है, इट्स लाइक ए गिटार, मैथ्स इज लाइक ए गिटार। एक क्यूमैथ का ऑफिशियल स्टूडियो चैनल है, मैं चाहूँगा आज ग्रुप में भेजूंगा उसको भी, तुम लोग डालना। उसमें छोटी छोटी अपडेट्स आती हैं, कुछ कुछ मिस्ट्रीज आती हैं, तो सब लोग देखना उसको, ठीक है? मैं ही नहीं बताऊंगा, उसमें कुछ चीज़ें जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं फ्री रिसोर्सेज में, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करो, देखो, जानो अपने टाइम से, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। खाली शॉर्ट्स देखने में फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक सबका हो गया तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir, done. डन? ओके Done. ओके, ठीक है। तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों 2x इज इक्वल टू 4, और इस 2 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ इधर पे, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, 4 इंटू ये 1/2 हो जाता है कि नहीं? ट्रांसपोज Yes, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही मतलब इसको बोलते हैं अपोजिट हो रहा है, एक प्रकार से इन्वर्स हो रहा है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे मैंने बोला दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये जो पावर 2 है जब इधर जाएगी तो इसको हम बोलेंगे 4 टू द पावर 1/2। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. इसी का तरीका होता है दूसरा लिखने का, √4, ठीक है? अगर मैं दोस्तों आपसे बोलूंगा x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, 27 टू द पावर 1/3. और जब इसको हमें क्यूब रूट में लिखना होगा तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे 27 लिखते हैं, ठीक है? Okay. अगर मैंने लिखा x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/5, ओ सॉरी 32। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5th रूट ऑफ 32। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज़ को नोट कर लो, क्योंकि अब यहाँ से एक स्टेप एकदम से ऊपर भागेगा, तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, पहले मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझाया है। So whatever power will be there, that number and then that power will be written, like 1 by that power will be Yes, written. that is 1/100%. It is like that only.
मैंने ये लिख लो तो मैं एक स्टेप और एक और चीज बताऊंगा, पहले ये 3 लिख लो आप। ये कैसे होता है समझ में आया ना आपको? जैसे ये Yes, 2 का sir. एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ये उधर जाके 1/2 होता है, तो जो पावर में 2 होता है वो भी पावर वहां जाके 1/2 हो जाती है। तो किसी भी नंबर की पावर 1/2 को ही हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसी तरीके से उसकी पावर अगर 1/3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसका नाम भी याद रखना, क्यूब रूट ऑफ। अगर किसी नंबर की पावर 1/5 है तो हम उसको बोलेंगे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। और यहाँ से फिर हम इसको बोलते हैं सर्ट्स, यहीं से चीज आती है निकल के, सर्ट्स। इतना लिख लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लास के जो भी नोट्स हैं किसी के मिस भी हो जाते हैं तो मैं क्लास के बाद भी उसको पीडीएफ में भेज रहा हूँ। आई होप कि सबको मिल रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको नहीं मिल रहे हैं? लास्ट क्लास के सारे नोट्स मैंने भेज दिए थे ग्रुप में। कोई है जिसको नहीं मिला? मेहर को तो मिल गया था, उसने अंगूठा भी दिखा दिया था। सानवी आपको मिला था? I didn't check. ओह वाओ, वाओ कमाल है यार। It was on my mom's phone, so I could not. अरे मैंने तुम्हारे फ़ोन पे भी भेजा था, तुम्हारा नंबर भी है, पर पता नहीं तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं सर को ब्लॉक करके रखा है। Most probably. I don't remember that. I just checked. आदित्य आपको मिला था? देखा ही नहीं होगा आदित्य ने। सब मिला था। ओके Sir, I only got last message on 4th. Not 4th, 12th. After that, I didn't get any message. अपनी मम्मी से मंगा लेना, मम्मी के मोबाइल में आपके। Okay. आपने मुझे होमवर्क भेजा था अपने पापा के मोबाइल से, हाँ. बहुत घटिया हैंड राइटिंग थी। I just didn't see it. मुझे लगा तुमने किसी कबाड़ी वाले से लिखवाया है। No, sir. या ऐसा होता है ना, आदमी सो के उठा। No, you told before 10 o'clock I had to send, right? So I was doing fast and then I sent it off. पता है टाइम प्रेशर तो ऐसा ही होता है। टाइम पे अगर जैसे खाना बनाना होता है ना, वी यूज प्रेशर कुकर, तो ऐसे ही प्रेशर कुकर में तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग तुमने लिखी है। मेहर की हैंड राइटिंग अच्छी है, आदित्य की भी अच्छी है, पर आदित्य होमवर्क भेजता ही नहीं है। सर मेरी अच्छी नहीं है। अच्छा, अरे मैं तो वैसे ही तारीफ ही कर रहा था यार, क्यों अपनी बेइज्जती करा रही हो सबके सामने। तुम अगर सानवी की देख लेती तो तुम बोलती सर मेरी भी अच्छी है। दिया की Usually हैंडराइटिंग, my handwriting is good, but only that day I was like, दिया की हैंडराइटिंग sorry अच्छी and I है, wrote that. पर दिया उल्टा सीधा लिखती है, कुछ भी लिखती रहती है। बोलती है कि मेरे को तो होमवर्क लिखना है, मैं बस कुछ भी लिख कर भेज देती हूँ। हैं दिया? दिया का दीप जल रहा है कि नहीं जल रहा है? जल रहा है सर। ओह, ये तो तुमने फॉरेन एक्सेंट में बोला थोड़ा सा, हैं? ये तुम्हारे अंदर का अंग्रेज बाहर आया क्या? कोई कॉल सेंटर में तुमने कहीं वो तो नहीं दिया इंटरव्यू, जल रहा है सर? नो सर। ओके, हो गया सबका भैया? लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स टू द पावर 3/2। अगर मैंने लिखा फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक्स टू द पावर 8/5। यहाँ वाला नंबर कहाँ पे आता है? नीचे, और एक्सपोनेंट वाला नंबर तो ऊपर ही जाता है। समझ में आ रहा है सबको कि कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? बताओ। सर समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे वैल्यू निकाल के बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर 2 क्या होगा दोस्तों? बताओ। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 टू द पावर 2/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा, यानी 4 टू द पावर 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? Yeah. ओके अच्छा, अब एक दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है? तो दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इसका स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है कि नहीं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता यस हूं। सर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? 2 बार।
और इसका आंसर क्या आया था 4। तो याद रखना कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट हटाना है, अगर वो नंबर अकेला है अपने आप में, हाँ, अगर स्क्वायर रूट एक्स को मुझे हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, कि मेरा आंसर क्या आ जाए एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरा आंसर क्यूब रूट है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर एक्स आ जाए, बताओ। क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर एक्स आ जाए? क्यूब एक्स। नहीं, अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्यूब रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दोस्तों आएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल तो नहीं होगा, फाइनल आंसर तो एक्स टू द पावर 2/3 हो रहा है, ये तो कैंसिल नहीं हुआ। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे न्यूमरेटर में भी तो 3 बनाना है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, 3 है ना, न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, 1 है। तो न्यूमरेटर में अगर मुझे 3 बनाना है और पावर्स आपस में ऐड होती हैं, पावर आपस में ऐड होती हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? ये तो डिनोमिनेटर का तो 3 हो ही गया, इसको मैं ऐड करूंगा 2 से, क्योंकि 1 + 2 कितना बन जाता है 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। समझ में आ रहा है कि नहीं? या आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? और को डिस्टर्ब करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं टफ करता जाऊंगा, जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा मुझे। पहला क्वेश्चन है आदित्य, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के लिए। आदित्य आपको बताना है 5th रूट ऑफ 2⁻³ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 2 आ जाए। आदित्य, दिया बेटा आपको बताना है कि क्यूब रूट ऑफ 8 के स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 8 आ जाए। सानवी, आपको बताना है 7th रूट ऑफ 4 स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। और दिया, आपको मुझे बताना है, दिया से दोबारा तो नहीं पूछ रहा मैं? अगेन यू आस्किंग। अरे मेहर बच गई, मेहर पे बानी होगी। ओके, क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन चारों बच्चे करो, फिर मैं रैंडम किसी से भी पूछ लूंगा। चारों क्वेश्चन सभी के लिए अभी के अभी करना है। टाइमर स्टार्ट्स है नाउ। मेहर, आपका क्वेश्चन है 6th रूट ऑफ 3 स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 3 आ जाए। पहले तो ये करके बता दो मुझे। चारों क्वेश्चंस करो, जब सबका हो जाएगा मुझे टिंग डाउन कर देना, मैं समझ जाऊंगा। और गूगल से मत पूछना, क्योंकि गूगल में सवाल नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को गुड न्यूज़ बता देता हूँ, अगर तुम गूगल पे जाके सुधांशु पांडे क्यू मैथ टाइप करोगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा वो मेरा ही आता है। तो मैं टॉप ट्यूटर्स की श्रेणी में आ चुका हूँ, तुम्हारा ट्यूटर जो है वो टॉप ट्यूटर्स की श्रेणी में है। तो हालांकि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं बढ़ाने वाला हूँ। तुम लोग सोचो कि सर तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फ़ीस बढ़ाने में तुम लोग भाग जाओगे और मेरे को अपने पेट पे लात नहीं मारनी है। चलो चलो चलो, शाबाश बच्चों। मैं चाहता हूँ इस साल तुम लोग धमाल करो, ताकि मैं तुम लोगों का नाम डाल सकूँ अपनी फ़ोटो वाली लिस्ट में, फ्रेम की लिस्ट में। हाँ देखो, ये बच्चों ने अच्छा अच्छा पढ़ा था। दिया दिया जलाओगे तुम मेरा? Yes, sir. ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन करो। आदित्य बेटा, क्या रहा आपका? आ रहा है किसी का? किसी का नहीं आया? ये तो चिविल्ली वर्ग का सवाल था, 30 सेकंड का सवाल है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को दिमाग में रखना है, आपको वही नंबर लाना है जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। बहुत टाइम दे दिया मैंने। अरे हद हो गई। कोई नहीं बता रहा है। अरे तुम लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया क्या? आज कोई व्रत का दिन नहीं है। सब लोग म्यूट हो रखे हो। इनो चोलवे, मेहर को छोड़ के कोई अनम्यूट नहीं है।
महर हो गया बेटा? नहीं। I'm getting confused. चलो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कर देता हूँ इस सवालों को। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से देखो ध्यान से। मुझे अगर इस 5 को कैंसिल करना है तो मैं फिफ्थ रूट ऑफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे 3 है तो मैं 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस 3 को कैंसिल करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब रूट ऑफ 8 से, 8 की पावर 1। यहाँ पे मुझे 7 को कैंसिल करना है तो मैं लिखूंगा 7th रूट ऑफ 4 की पावर 5। 4 to 1. 4 to power 5. 5 + 2 7 होता है ना। Okay, yeah. Okay. और यहाँ पे 6 बनाना है मुझे तो क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर 4। समझ में आया सबको कि नहीं आया? No, 1 minute. बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया। नहीं आया? महर, Okay, I understood. ध्यान से I देखो बेटा, understood. अगर मुझे इस 3 को 5 बनाना है तो 3 + 2 5 होता है ना, Yeah. तभी तो 5 कैंसिल होगा। इस 2 को मुझे 3 बनाना है तो 2 + 1 3 होगा ना। यस इस 2 को मुझे 7 बनाना है तो 2 + 5 7 होगा। क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ये क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। 7th रूट ऑफ 4 की पावर 4 का स्क्वायर था, पावर आपस में ऐड हो जाती है तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7th रूट ऑफ 4 की पावर 7 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 टू द पावर 7/7, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी आंसर 4 आ गया। अगर किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फिफ्थ रूट कैंसिल करना है तो उसके न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर नहीं, उसके एक्सपोनेंट पे भी वही पावर होनी चाहिए जिसका वो रूट है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? सर आपने फोर्थ पार्ट में 3 बेटा यहाँ पे 6 है, अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो क्या ऐड करूंगा? 4. 4। अरे सॉरी, आपने क्यूब लिखा। अच्छा, इस लड़की ने गलती ढूंढ ली मेरी, Oh. ये किसी ने नहीं देखा। लो, जय हो मेहर जी की, शाबाश। Okay. समझ में आया सबको? Yeah. आगे बढ़ते हैं। इस बार 4 सवाल दे रहा हूँ। आदित्य बेटा, आप हो कि गायब हो गए? खाना खाने तो नहीं लग गए? सही तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग करेंगे। ठीक है, आदित्य, मैं ABCD कर देता हूँ। तो ABCD में सबसे पहले आता है आदित्य, फिर आती है दिया, उसके बाद आते हैं हमारी महर, और फिर आती है हमारी सानवी। ठीक है, जब तक मैं 14 क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबके आंसर हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन है 7th रूट ऑफ 4 टू द पावर 6 इंटू वॉट इज इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन है 6th रूट ऑफ 5 टू द पावर 2 इंटू वॉट इज इक्वल टू 5। अगला क्वेश्चन है 8th रूट ऑफ 9 टू द पावर 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद वॉट टू गेट 9। अगला क्वेश्चन है 3rd रूट ऑफ 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद वॉट इज इक्वल टू 2। चारों क्वेश्चन सभी ने करने हैं। मैं रैंडमली किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अपना क्वेश्चन तो बताना ही है, एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ किसी से। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अगले 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। सर डन। ओके, अगर डन है तो बताओ बेटा कि क्या लिखा जाना चाहिए। Even I think I have got the answer, but I'm not sure. ओके, वो तो तुम कभी भी नहीं होती हो। बताओ। Root 3, sorry, yeah, to the power 2 to the power 1. क्यूब रूट ऑफ 2 2 टू द to the पावर power 2। 1. Yeah. 2 द पावर 2 बेटा है, 1 तो यहाँ पे है, 1 में 2 ऐड करूंगा तब तो 3 बनेगा। Okay, yeah, fine. I thought we have to minus.
मेहर बताओ बेटा क्या आया? So 8, 9 to the power 5. हाँ 8 नहीं बोलना है, 8th रूट ऑफ 9 टू द पावर 5 बोलना सीखो। बताया अभी, चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने। आदित्य बताओ। Sir, root 7. लो रूट 7 कहाँ हो गया? सेवंथ Sir, रूट, 7 root 4 1 सेवंथ रूट ऑफ 4 टू द पावर, 1. हाँ 4 भी बोल सकते हो, सेवंथ रूट ऑफ 4। ठीक है, चलो दिया बताओ। दिया आप सोच रही कैसे बोलना शुरू करो। रिकॉर्डिंग में जाओ, पीछे से फिर से सुन के आओ। 6th रूट ऑफ, अरे कहाँ हो दिया? दिया तो चली गई, नेट ही चला गया। 6th रूट ऑफ 5 टू द पावर 4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर सर्ड्स का भी यूज करते हैं। क्या बोल रही हो बेटा? सर सर्ड्स का भी यूज करते हैं। तो ये सर्ट्स ही तो समझा रहा हूँ बच्चों, ये सर्ट्स ही पढ़ा रहा हूँ तुमको। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, नाम से नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके यस सर। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक बात और ध्यान रखो बेटा, कि मैं रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन रूट 2 में रूट 3 आपस में ऐड नहीं कर सकता। कांट बी एडेड। बताओ क्यों? क्योंकि रूट 2 एंड रूट 3 आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगे। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगे तो उनको आप कभी ऐड कर पाओगे? उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, तो उसका एडिशन कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं तुमसे सिंपल बोलूं कि 1.21 बार और 1.0347 बार इसको ऐड करना हो, तो इसको आप ऐड कर सकते हो क्या? मुश्किल हो जाता है ना। हम सब्ट्रैक्शन भी हम तभी कर रहे थे जब डेसिमल हमारा यहाँ पे था और बार भी हमारे इक्वल थे, 47 बार और 47 बार, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल में ही अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो दे कैन नेवर बी एडेड। दीज आर नोन एज अनलाइक टर्म्स। इसको हम बोल सकते हैं अनलाइक टर्म्स। तो आप बोलोगे कि सर इनको क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, मैं x प्लस वाई कर सकता हूं, तो इसका आंसर तो x प्लस वाई ही आएगा, लेकिन मैं x और y को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों एक ही टर्म बन जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई को आपस में ऐड नहीं कर सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू वाई को मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। और कैसे होगा मल्टीप्लाई? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज होगा। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 का मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है कि दो नंबर अगर सेम है और पावर भी सेम है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर को ब्रैकेट में डाल दो, तो हमारा आंसर आएगा 6 टू द पावर 1/2 यानी रूट ऑफ 6। यानी अंदर के नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं बनिस्बत उनकी एक्सपोनेंशियल पावर सेम हो। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 6, कोई ये मत लिख देना, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 4th रूट ऑफ 6 मत लिख देना कि सर ये 2 इंटू 3 6 होता है और 3 + 1 4 हो गया ना। देखो ध्यान से, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1/2, यहाँ a और b भी डिफरेंट हैं और m और r भी डिफरेंट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। समझ में आ रहा So है? it will be like that only. It They will be not like get that multiplied. only. Yes, they will be like that only.
But if it is not like if the power is same, then we then can law of do exponent will apply. yeah. If the power is same, the law of exponent will apply. Suppose somebody is telling you to multiply cube root of 7 with cube root of 7 to the power 5. So this is going to be cube root of 7 to the power 1 plus 5, which is equal to 7 to the power 6 by 3, which is equal to 7 square, whose value is 49. Okay, fine, understood. Understood? Yeah. मेहर बेटा समझ में आ रहा है? सर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? ना 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 ना, जब बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो एक ही बात हुई. जब ऐड ही नहीं हो सकता तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. अनलाइक नंबर से ऐड नहीं कर सकते, लाइक ऐड कर सकते हो. लाइक का बता देता हूँ कैसे होता है. लाइक सीख लो. अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने, ये तो मैं बताना ही भूल गया. ध्यान दो, अगर √2 प्लस √2 हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना सबको? Yes, sir. तो मुझे बताओ दोस्तों, x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है. तो √2 प्लस √2 क्या होगा? अगर मैं √2 कॉमन ले लूंगा तो पहले वाले में से 1, दूसरे वाले में से 1, तो ये 2√2 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं √2 प्लस 3√2 कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 4√2. √2 माइनस 3√2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये -2√2. यानी कुल मिला के कोफिशिएंट जो होता है, असल में तो कोफिशिएंट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इर्रेशनल नंबर तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, सिर्फ उनका कोफिशिएंट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इर्रेशनल नंबर एज इट इज बने रहते हैं, और तभी बने रहते हैं जब वो सेम हो. अगर मैं कहीं तुमको बोल दूं कि 2√3 प्लस 3√2, तो कोई पागल इसको 5√5 मत लिख देना. बोलना सर 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 5 होता है, ये मत लिख देना. ठीक है? ये ऐड नहीं होगा, ये वही रहेगा. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा, 2√3 प्लस 3√2. याद रखना कि एक्स आलू सिर्फ आलू के साथ जुड़ता है. यू कैन नॉट ऐड एप्पल टू ऑरेंजेस, दे इवन कांट कंपेयर. ऑरेंजेस 100 रुपये किलो है, एप्पल 200 रुपये किलो है. चाइना से वैक्स लगा के आता है वो. ऑरेंज पे तो वैक्स नहीं लगा सकते ना, उसको तो छील के खाना है. तो √3 और √2 को ऐड जूस तो बना सकते. क्या बेटा? बोलो बोलो, जूस क्या तो बोल रहे बना हो? सकते. जूस बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं बेटा, एक को काट के खा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते. दोनों को काट करके फ्रूट सलाद बना सकते हो. ये देखो फ्रूट सलाद बन गया है. फ्रूट सलाद ऐसे अच्छा लग रहा है, पर आपस में ऐड नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा. मिक्स कैसे होगा? दूध के साथ दूध ही मिक्स होगा. ठीक है? करना नहीं है. बोले सर मैं तो Okay, पानी sir. मिलाएगा, मैं पानी मिलाएगा, ऐसे नहीं करना. समझ में आ रहा है? लेकिन 2√3 को 3√2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसे में 3 × 2 कितना होता है? 6, और 3 × 2 कितना होता है? 6. तो 6√6. समझ में आया? ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर समझ में आया? मैं फिर से एग्जांपल के साथ बता देता हूं कि 2√3 प्लस 4√2 इज नॉट इक्वल टू 6√5. ये गलती मत करना. दिस इज इक्वल टू 2√3 प्लस 4√2, यही होता है. लेकिन 2√3 प्लस 4√3 करूंगा तो दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि √3 सेम है तो ये 6√3. तो असल में ओनली कोफिशिएंट्स आर एडेड. क्या ऐड हो रहे हैं? जैसे अलजेब्रा में ऐड होते थे. ठीक है? और उसमें भी क्या लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे. तो लाइक टर्म्स मतलब कि √3 लाइक टर्म्स हो गए. लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं. 2√3 इंटू 4√2, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? 8√6. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा. जिस नंबर की पावर 1 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए. √3 और √2 की पावर 2 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए. क्लियर है? अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा.
ये हो जाएगा 1/2, 2/4 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √of 3/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर नीचे सेम पावर है, पहले नंबर को डिवाइड कर दो फिर पावर लगा देना, ठीक है। लेकिन क्या नहीं कर सकते, तो 2 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 4 क्यूब रूट ऑफ 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8, और ये √3 ही रहेगा, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इस क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो अगले 1 मिनट में, नहीं डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लेना। इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की वीडियोस को देखते रहें। इस साल पूरे साल का कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। चलो सभी को